Hello all, welcome to the new session. So in this session, we are going to discuss about the last method of unit number third, which is Simpson's one-third rule for double integration. Last session is about the trapezoidal rule for double integration. So this is the last method in unit number third. Now after completing this method, we'll see some application based numerical which is related to the unit number 3. So let's move towards the numerical of Simpson's one-third rule for double integration. So here you can see the numerical first. So as always, first read the numerical carefully, write down the given data. So here you can see find the double integration of f of xy is equal to x square plus y square plus 5. So the function is given in the numerical. We will write one by one. So first write down the given. So given is function is given in the numerical. So f of xy is equal to x square plus y square plus 5. This function is given in the numerical. Now the limits are given in the numerical, that is x, for x is equal to 0 to 2 and for y limit is 0 to 2, right? So here again we can write down like this: x0 is equal to 0 and xn is equal to 2. Similarly for y we can write down like this: y0 is equal to 0 and ym is equal to 2. Now taking increment in both x and y as 0.5, मतलब इंक्रीमेंट इन x एंड इंक्रीमेंट इन y की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ h and k is given in the numerical. Now applying the Simpson's one third rule, right? So हमें Simpson's one third rule यूज करके इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है, राइट? सो और हमें वैल्यू दी है h और k की. सो k इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0.5. So which is also given in the numerical. You can see here in the numerical, taking increment in both x and y as 0.5, right? So that's why the h and k is equal to 0.5. So this data is given in the numerical. So by using this data, you have to calculate the area under the curve by using Simpson's one-third rule. Now this is the numerical which is based on the double integration, right? So as always, the first step जिसे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल की केस में देखा था. So the first step is to calculate the corresponding values of x and y with respect to the h and k, right? Because we have a value of h is equal to 0.5 and k is equal to 0.5. So by using this h and k value, we have to calculate the values of x and y, right? So first we'll start, first find out the values of x, and then we'll move towards the uh, values of y, right? सो मैं ये एक पार्टीशन बना देता हूँ इस तरीके से. यहाँ पे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. सॉरी, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप, राइट? सो हियर कैलकुलेट values of x and y with respect to h and k, right? So this is the first step. यही सेम स्टेप हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में भी फॉलो किया था. So right, so here first we have to calculate the value of x and y. So starting from the x0, so here x0 is equal to 0, which is given in the numerical. So for calculating the values of x1, you have to prepare a formula. So x1 is equal to x0 plus h, right? So h is given in the numerical, that is 0.5. So 0 plus 0.5 is equal to 0.5. So ये x1 की वैल्यू मिल गई. Similarly, calculate the value of x2. The formula is x0 plus 2h, right? So put the value of x0 and 2h, you will get the value of x2, that is 1. Now x3 is equal to x0 plus 3h. So here x0 is equal to 0, 3 multiplied by 0.5,
So after calculation you will get 1.5. So similarly calculate the value of x4. x4 is equal to x0 plus 4 multiplied by h0 plus 4 multiplied by 0.5. So here 2, right? So this 2 is nothing but the value of xn, because हमें x के लिए लिमिट दिया है 2 एंड सॉरी 0 to 2, तो हमें x0 is equal to 0 और xn is equal to 2 मिल गया, मतलब x की वैल्यू जो है वो 4 हमें मिल गई, राइट? सिमिलरली कैलकुलेट the values of y starting from the y0. Now the value of y0 is given in the numerical. So y0 is equal to 0. Similarly calculate the value of y1. So for y1 the formula is y0 plus k, right? So y0 is equal to 0 plus k is equal to 0.5. So the y1 is equal to 0.5. Similarly calculate the value of y2. So for y2 formula is y0 plus k, sorry, y0 plus 2k, right? So here 0 plus 2 multiplied by 0.5. So the answer is 1. Similarly calculate the value of y3. So formula is y0 plus 3k, right? So 3k is 3 y0 कितना है 0 plus 3 multiplied by 0.5, तो कितना आएगा 1.5, right? Similarly calculate the last value, that is y4. Formula is y0 plus 4 multiplied by k and the value is 2, which is again the value of ym, right? Because the limit for y is also given in the numerical, that is 0 to 2, right? So इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में सारी x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है with respect to the values of h and k, right? So this is the first step. Now moving towards the second step. Now in second step again you have to calculate the values of f of xy, right? जैसे हमने ट्रेपोजॉइडल की रूल की केस में किया था, ट्रेपोजॉइडल के रूल में हमने x0 को कांस्टेंट कंसीडर किया था, फिर x1 को कांस्टेंट कंसीडर किया था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सारी f of xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट? सो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते। सो सेकंड स्टेप कैलकुलेट all values of f of x comma y, right? Now here f of xy function is given in the numerical. So f of xy is equal to x square plus y square plus 5. So this function is given in the numerical, right? So अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे x0 is equal to constant. So x0 is equal to constant, right? So मैं x0 को constant कंसिडर करके मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा एफ ऑफ एक्स वाई की। सो किस तरीके से मैं करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले लिखूंगा एफ ऑफ x0 y0, राइट? सो ये x0 और y0 मैं इस फंक्शन में डालूंगा, तो किस तरीके से होगा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस 5, राइट? अभी x0 और y0 की वैल्यू मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लास्ट इसमें कैलकुलेट किया है x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0। सो ये x0 और y0 की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे। सो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5, तो मुझे f ऑफ x0 y0 मिलेगा, दैट इज 5, राइट? सिमिलरली यहाँ पे अभी x0 कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x0 और y1 के लिए, राइट? अभी ये इक्वेशन कैसे बनेगा, x0 स्क्वायर क्योंकि x0 कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा y1 स्क्वायर प्लस 5, राइट? x0 की वैल्यू मेरे पास है 0 स्क्वायर, y1 मैंने कैलकुलेट किया है, y1 मैंने क्या कैलकुलेट किया था 0.5 स्क्वायर प्लस 5, राइट? तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी 5.25। Similarly, calculate the value of f of x0 y2, x0 y2, right? So x0 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे x0 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 5, right? So here again 0 square plus
1 स्क्वायर प्लस 5। सो आंसर आएगा आपका 6 बिकॉज 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली कैलकुलेट एफ ऑफ x0 y3। उसके लिए इक्वेशन बनेगा x0 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 5। सो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर प्लस 5। इसको कैलकुलेट करोगे आपको एक आंसर मिलेगा 7.25। एंड लास्ट इज f of x0 comma y4। so here x0 square plus y4 square plus 5, again put the values, x0 means 0 square plus y4 means 2 square plus 5। सो इसको कैलकुलेट कीजिए आपको आंसर मिलेगा 9, राइट। सो इस तरीके से आपको पहले x0 कांस्टेंट कंसीडर करके सारी f ऑफ xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हो गया सेकंड स्टेप में से पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट में हम x1 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और इसी तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टाइम हम x2 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, x3 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और x4 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी f ऑफ xy की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। सो हियर यू कैन सी, हियर कीपिंग दिस x1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी है, वो आप करेक्ट करिएगा। यहाँ पे मैंने +5 लिखना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे +5 आएगा, +5 आएगा, +5 आएगा, यहाँ पे भी +5 आएगा, यहाँ पे भी +5 होगा बिकॉज इक्वेशन इज x² + y² + 5। सिमिलरली हियर ऑल्सो +5 +5 +5 +5 and +5, right? So likewise you have to calculate all the values of f of xy. Now here in second step, by keeping the x1 is constant, calculate all the values of f of xy. Now in third case, keeping the x2 is constant, calculate all the values of f of xy. Now the next step is, by keeping the x3 is constant, calculate all the values of f of xy. So here again +5 is there, +5 +5 5 5 and 5, right? Similarly here last, by keeping x4 constant, calculate all the values of f of xy, right? So इस तरीके से आपको सारी f of xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, right? Now after calculating the values of f of xy, next is you have to prepare a table for all the values of f of xy। जो जो हमने values calculate की है ना, जैसे for example यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने 5 कैलकुलेट किया है, 2.5.25 6 7.25 9। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है 5.25 5.5 6.25 7.5, इन सारी वैल्यूज के लिए आपको एक टेबल बनाना है, राइट। जैसे टेबल हमने ट्रेपोजाइडल रूल के टाइम बनाया था, सिमिलर काइंड ऑफ टेबल आपको यहाँ पे भी बनाना है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ f ऑफ xy, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। Now the next step is prepare, number third, prepare or make a table for all values of f of xy, right? So prepare a table for all the values of f of xy. This is the third step। तो चलिए अब ये सारी जो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज है वो मैं इस टेबल में लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा x की वैल्यू, यहाँ से मैं लिखूंगा x की वैल्यू और यहाँ पे होगी सारी y की वैल्यूज, राइट। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x0 x1 x2 x3 x4 तक वैल्यू है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 0, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1 1.5 and 2। Similarly the values of y are 0 0.5 1 1.5 and 2, राइट। इसके बाद ये सारी वैल्यूज लिख दी मैंने। सिमिलरली
अभी यहाँ पे ये जो सारे ब्लॉक्स है उसमें मैं एफ ऑफ एक्स वाई की सारी वैल्यूज लिखूंगा, राइट। ये तो एक्स की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल रो में। उसके बाद मैं सारी एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिखूंगा, राइट। सो तो पहली वैल्यू है मेरे पास, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय कीपिंग द एक्स जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने वैल्यू निकाली है 5.25, 6, 7.25 एंड 9। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा जैसे इस तरीके से, देखो एक्स जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये पूरे कॉलम में वो वैल्यू आएगी, राइट। सो एक्स टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो हियर एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, x3 और x4। पहले केस में हमने क्या किया था, x0 को कांस्टेंट किया था, तो यहाँ पे मैं सारी वो वैल्यू लिख दूंगा। दूसरी केस में मैंने x1 को कांस्टेंट किया था, तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख दूंगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, जब x0 मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया था तो वैल्यूज आई थी 5.25, उसके बाद आया था 6। यहाँ पे थोड़ा इसको फिर से लिख देता हूँ, 5.25, 6, 7.25 and 9. Similarly, when we kept the x1 is equal to constant, so the values are 5.25, 5.5, 6.25, 7.25 and 9.25. Similarly, here for x2, for x2 is 6, 6.25, then 7, then 8.25, and here last is 10. Now for x3, 7.25, again here 7.2, 7.5 and 8.25, 9.5 and 11.25, and here in last column 9, 9.25, 10, 11.25 and last is 13, right. So इस तरीके से आपका टेबल बनेगा सारी एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू के लिए, राइट। नाउ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस टेबल, फाइनली you have to use the trapezoidal, sorry, Simpson's one third rule formula for double integration। उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक जैसे आप उसे एक डिज़ाइन भी कह सकते हो, डिज़ाइन के तौर पे आपको बनाना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टेबल, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस तरीके से करना है, राइट। आपको यहाँ पे एक इस तरीके से एक स्क्वायर बनाना है, राइट। या ध्यान से आप देखिए स्क्वायर किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा, राइट। नाउ ये स्क्वायर के पॉइंट्स हो गए, स्क्वायर टर्म्स इन्हें हम कहते हैं, राइट। और इन्हीं में से आपको एक रोम्बस भी बनाना है इस तरीके से। और ये जो हो गई, ये हो गई आपकी रोम्बस की टर्म्स, राइट। इस तरीके से आपका बनेगा। ये हो गया आपका A1, राइट। इसी तरीके से आपका यहाँ पे A2 बनेगा, यहाँ पे नीचे A3 बनेगा और यहाँ पे नीचे A4 बनेगा, राइट। सो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है इस टेबल के ऊपर और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का, राइट। तो अभी मैं आपको इस एक स्ट्रक्चर के लिए बना के बताऊंगा। अभी बाकी जो है वो आप खुद से, आपको नेक्स्ट इसमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से होंगे। सो द formula is, for calculating this A1, the formula is summation of square term plus 4 multiplied by summation of rhombus term plus 16 multiplied by remaining terms, right। So सबसे पहले तो आपको अगर इस एक A1 को आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म। अभी स्क्वायर टर्म कौन सी है, 6, 5, 6 एंड 7, ये सारी स्क्वायर टर्म है, तो इसका समेशन प्लस समेशन ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ रोम्बस टर्म।
4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ रोम्बस टर्म कौन सी है, रोम्बस टर्म्स है 5.25, ये 5.25, 6.25 और 6.25, राइट। नाउ प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टर्म्स, अभी रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बची है, रिमेनिंग टर्म्स ये सेंटर वाली टर्म बच गई 5.5। सो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप A1 कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली कैलकुलेट द A2, A3 एंड A4, और उसके बाद आप लास्ट इक्वेशन यूज करोगे और आपको एरिया अंडर द कोर मिल जाएगा, राइट। तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से करके रखा है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी करके रखा था। सो likewise you can prepare a table and you can prepare a structure here. So you can see here A1, A2, A3 and A4. So these are the square term. You can see here square term, square term, square term. Sorry, this is not a square term. This is a rhombus term, right? So स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टर्म। अभी फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। हमें सबसे पहले ये A1 के लिए कैलकुलेट करना है, A1 हमें कैलकुलेट करना है। तो A1 के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा हियर A1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टर्म प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ रोम्बस, रोम्बस टर्म प्लस 16 multiply by summation of remaining term, remaining term, right। सो अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो स्क्वायर टर्म कौन सी है, A1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्क्वायर टर्म इज 5, 6, 7 एंड 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 प्लस 6 प्लस क्या था, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5, right। So these are the square term plus 4 multiply by all the rhombus term। rhombus term कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो rhombus term is this 5.25, 6.25, 6.25 and 5.25, right। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5.25 plus 5.25 plus 6.25 plus 6.25। So these are the rhombus term plus 16 multiply by remaining terms। अभी remaining terms मतलब कौन सी है, remaining terms मतलब ये जो बीच वाली जो बच गई है last term which is called as a remaining term। So this is 5.5। So यहाँ पे 16 multiply by 5.5, इस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा A1 का वैल्यू, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन द A1 इज 0.4। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A2, A3 एंड A4। अभी A3 के लिए ये सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ रोम्बस टर्म प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टर्म। A2 आपको इस तरीके से मार्क करना है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे A2 के लिए स्क्वायर टर्म कौन सी है, ये है, ये 10 एंड दिस 7, राइट। एंड रोम्बस टर्म्स आर दिस, दिस, these and these, so by and the remaining term is 7.5। so again put all the values into the formula and calculate the A2, similarly calculate the A3 and calculate the A4, right। so मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ A2 और A4 का वैल्यू। प्लीज आप उसको कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दूंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। सो द A2 is 276, राइट, एंड द A3 इज अगेन 276, आप कैलकुलेट करिएगा, एंड A4 इज 348, राइट। सो हियर द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3 and A4। नाउ फाइनली द स्टेप नंबर 4 is to calculate the final equation or final to calculate the total area। so here calculate
total area under the curve capital A is equal to, now the formula is capital A is equal to h by 3 plus k by 3 multiply by a1 plus a2 plus a3 plus a4. Now put all the values into this formula. Now you know the value of h, you know the value of k. Now you have calculated the value of a1 to a4. Now put all the given and calculated value into this equation. Now finally you will get the final total area under the curve. Now the final area is capital A is equal to 30.6666. This is the final answer. राइट। तो इस तरीके से आपको सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का जो इक्वेशन है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल आपको 10 या फिर 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आई होप ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।